You're watching Reality Check. We are coming to you live from a Nitish Kumar rally in Mokama in Bihar as the crowds have gathered for the first on-ground rallies by Nitish Kumar during the pandemic. Now, many people believe that it could be a cakewalk for Mr. Kumar as he battles for his fourth term. But the question still remains as Nitish takes the stage, that will it be a cakewalk or will this be a referendum on his image as Sushasan Babu, a man of Vikas, and also most crucially, will his ally the BJP, whose flags you can see here as well on the rally, back him fully to be Chief Minister regardless of the outcome? Or will there be a twist in the tail for Nitish Kumar? So we are at the Nitish Kumar rally in Mokama. These are among the first rallies in Bihar which are being held after the pandemic, or in a sense during the pandemic. And despite announcements from the stage to maintain social distancing and wear masks, as the camera can pan, and you'll see, Mariam, that many of them are not maintaining social distancing. People have all clustered together and many are not wearing masks. And that has been a question on many of our minds. This is the first election during a pandemic in India. So how do you enforce social distancing norms? How do you enforce those COVID protocols in a country as large as India and during an election? That's true, especially because political parties want big crowds as well. So there's always going to be that balancing act. In a speech, the Chief Minister lists the achievements of his tenure. हमने सर्वे किया था 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 से भी कम था। और जब हमने काम शुरू किया तो अब मालूम है लड़का लड़की बराबर। और अब तो इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी उस परीक्षा में लड़का से भी ज्यादा मैट्रिक की परीक्षा में लड़की गई। पहले कितना था? महिलाओं के लिए कौन सा काम कर रहे थे? कोई काम नहीं कर रहे थे। जीविका समूह का हमने गठन करवाया, जीविका योजना की शुरुआत कराई, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया और तय किया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह कम से कम बनेगा। अब वो बन गया। 1,20,00,000 महिलाएं जीविका समूह से, स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। अब कितनी जागृति आई है जरा देख लीजिए। अब मर्द और स्त्री सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। और एक बात और जान, He also draws aim at his political rivals of the supposed Gunda Raj of the Lalu years. पति पत्नी को राज करने का मौका मिला 15 साल। क्या था पूरे राज्य का कि आर्थिक स्थिति क्या थी? सकल घरेलू उत्पाद 5-6 में 76,466 करोड़ था। और हम लोगों ने जो विकास का काम किया अब 19-20 में आकर के ये 4,14,977 करोड़ रुपया हो गया स्थिर मूल्य पर। Go by the numbers, and the Nitish era has a mixed record. Bihar's growth has increased from 4% in 2012-13 to 10.5% in 2018-19. This is as per the Bihar Economic Survey. But on several other indicators, Bihar has fared poorly. The crime rate has risen by 51% for IPC crimes and by 444% for other crimes. Health has worsened. The overall performance score for Bihar has dropped 6 points according to the Niti Aayog. And when it comes to health compared to other states, Bihar is right at the bottom of the class, just above Uttar Pradesh. Malnutrition, another indicator, has improved under Nitish rule. Stunting amongst children improved by 6 percentage points. But Bihar is still the lowest ranked state when it comes to malnutrition in India. So we've just finished the rally of Nitish Kumar's speech. Here are some people in the crowd. आप सब लोग आए नीतीश जी को
देखे आप नीतीश जी को? भाषण सुने? अच्छा, क्या मतलब क्या कैसा लगा, क्या बोले आपको? अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा? वो तो बिहार में खुद दिखाई दे रहा है सर कि नीतीश कुमार ने क्या किया, अच्छा, क्या किया, क्या नहीं किया, ये पूछिए सर। जैसे कि बताइए। जैसे में शिक्षा व्यवस्था, ये जो क्षेत्र है सर, हाँ। यहाँ पैदल चलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। आज का ऐसा समय है, नीतीश जी का देन, माननीय सांसद ललन बाबू का देन, हाँ। जो कि अभी हम यहाँ से 2 घंटा के अंदर पटना से कहीं भी रवाना कर सकते हैं सर। तो रोड बन गए हैं? यस सर। एक तो रोड बना है, और क्या काम हुआ है बताइए भाई साहब, आप बता रहे थे क्या, और क्या रोड के अलावा और क्या काम हुआ ट्रामा है? सेंटर भी दे दिए हैं साहब। क्या दे दिए हैं? ट्रामा सेंटर भी हो गया, हॉस्पिटल ट्रामा का। सेंटर? जी जी। कहाँ पर? मोकामा रेफरल अस्पताल में। मौका पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था, अच्छा, दिक्कत था, लेकिन सुधार हुआ। किया है। और जी और क्या काम हुआ है? जी, हर तरह के अमन चैन जो है सर, रात में कहीं आ जा नहीं सकते थे। हर तरह का अमन चैन एकदम है, कहीं कोई प्रकार के कभी भी 12 बजे नहीं तो घूमने के दिन में अब जा नहीं सकते थे, रात में क्या जा अमन सकते चैन हो जी, गया है, पूरे अमन ये हो चैन, गया जी, है। हाँ। अच्छा, कहीं कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। तो आप चाहते हैं कि नीतीश जी जी, दोबारा जी, मुख्यमंत्री दोबारा बन के बने आएं? सर, वो बनेंगे, वो बनेंगे सर, मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे सर, अच्छा, बनेंगे एकदम बिल्कुल जी। लेकिन आप ही के ये गांव के लोग कह रहे थे यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वो थोड़े निराश भी है। निराश है तो अब हम क्या कहें, लेकिन बनेंगे वही बनेंगे। बेरोजगारी है यहाँ पे? एक बेरोजगारी का मतलब आखिर होता है क्या सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा। तो रोजगार तो सरकार तो घर में आके किसी को नहीं दे सकता है। रोजगार के लिए खुद अपने आप प्रयत्नशील होना चाहिए, तो रोजगार मिलता है। नहीं, लेकिन सरकार को नौकरी कराने की एक व्यवस्था बनानी चाहिए ना, जिससे लोग आके यहाँ फैक्ट्री डालेंगे, नौकरी वगैरह। तो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे? तो कोई फैक्ट्री रोजगारी आई है? सर आज से 3 टर्म 15 साल से आज तक एकागो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया सर। यहाँ तो स्थानीय विधायक अनंते बाबू थे सर, एकाबर क्वेश्चन उठाया गया आज तक। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ बेरोजगारी का प्रॉब्लम है यहाँ पे? बेरोजगारी नहीं है। ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप है कि यहाँ का एक रोजगार में लगा। अच्छा, यहाँ पे पूरी यहाँ बेरोजगारी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा समस्या है। अच्छा, एक चीज, सारा काम अच्छा ठीक है। एक चीज बताइए कि एक बात कहा रहा है कि भाजपा इस बार, नीतीश और भाजपा बराबर के टक्कर में है, सीटों का बंटवारा 50-50 है। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए। पहले ऐसा नहीं था, जेडीयू बड़ा भाई था, भाजपा छोटा भाई था। ठीक है, अब बराबर हो गया है। तो ऐसा कोई डर है कि अगर भाजपा को ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो वो उनको मुख्यमंत्री, नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी? ऐसा एनडीए है? का आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने रखा है। उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का नेता माना है, एनडीए का लीडर बना के रखा है। और भाजपा इस प्रकार का काम नहीं करता है। ये किसी दक्वानिशी विचारधारा के लोगों ने इस बात को छेड़ा है। तो मान नीतीश लीजिए, कुमार को बार बार प्रधानमंत्री जी तारीफ करते हैं और बिहार का नेता मानते हैं। मान लीजिए कि भाजपा को नीतीश जी से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, तो क्या वो तब भी नीतीश को सीएम बनने देंगे? जी, घोषणा किया है, उनका बात अडिग है। नीतीश जी से अच्छा बिहार में विकल्प कोई नहीं है सर। अच्छा, तो वो सीएम वही बनेंगे? वही रहेंगे, चाहे सीट किसी का कुछ भी आए। मोदी जी एनडीए का नेता ही नीतीश कुमार को मान लिए हैं, और कोई विकल्प ही नहीं है बिहार में। अच्छा, नीचे की योजना चलकर गांव में देख लिया जाए सर, नीचे का योजना देख लिया जाए, का झटका मार देते हैं। पानी भी नहीं गिरता है। क्या चीज? नल जल से पानी नहीं गिरता है। माइक में छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, तेजस्वी यादव slogans are being shouted here. नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप तेजस्वी यादव का नारा लगा रहे हैं? तेजस्वी यादव जीतेंगे और बिहार फिर विकास के पथ पर चलेगी। अच्छा, ठीक और है। जंगल राज खत्म होगा, जंगल राज खत्म होगा, ठीक है। मंगल राज आएगा, मंगल राज आएगा। Okay. So we are actually seeing, start the spitter, spark something. We'll get out of here, but seeing Tejasvi Yadav slogans at a Nitish Kumar rally is not something I have to say I've seen before. Hours before the rally, we traveled to 2 villages just across the road from the rally venue. So we are in Ghoswari village, which is technically falls in Patna district, and it's just across the road from where the Nitish Kumar rally is supposed to take place. And we are here
विद सम पीपल। आप सब यहीं गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, तो अभी जैसे चुनाव आया है, नीतीश जी भी आके यहाँ रैली करेंगे, तो यहाँ पर क्या लोगों ने सोचा है कि कैसे रहा है पिछले 5-15 साल से नीतीश का जो राज है? क्या ठीक लगा आपको, गलत लगा, क्या सोचा है? ठीक लगा, सबको ठीक ही है, गलत और सही तो सबको मतदान है, अपना मन का जिनको देना है सही है, राजनीतिक है तो किसी को देना है वोट, और क्या। अच्छा, मतलब नहीं पर थोड़ा सीधा सीधा बताइए। नीतीश सरकार तो ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। पिछली बार यहाँ के वोट किसको पड़ा था यहाँ पे? नीतीश कुमार के पास। आप सब लोग नीतीश को दिए? हाँ। नहीं दिए नहीं, जिससे कि सब कोई दिए, हाँ दिए, तो उसमें मतदान है अपना, सबने अपना अपना दिया। जैसे आपको कैसे लगा जो ऐसे नीतीश जीत लिया था, अनंत सिंह जीत लिया था? हाँ, पिछली बार तो अनंत सिंह जीते थे, निर्दलीय। अच्छा, लेकिन आपको कैसे लगे जैसे नीतीश हैं? आप चाहें ठीक लगे या बदलाव चाहेंगे? सब चीज तो ठीक है, खाली बेरोजगारी है जरा बढ़ गया बस। बेरोजगारी बढ़ गया है? हाँ। अच्छा, हम पढ़े हुए BSc, लेकिन कुछ तर नहीं है, बेरोजगारी है। आप पढ़े हुए हैं? हाँ, BSc। कब ग्रेजुएट किया? 2018 में। 18 में, 2 साल से। तो बेरोजगारी की दिक्कत है। अभी तक कोई जॉब आपने ढूंढने की कोशिश की? हाँ थी, लेकिन मिला नहीं अभी। मिला नहीं? और भी काफी बेरोजगार लोग हैं गांव में? हाँ, बेरोजगार लोग, बेरोजगार बहुत हैं। हाँ। आप? मैं भी बेरोजगार हूँ। आप क्या करते हैं? अभी कमाने जाता हूँ बाहर। अच्छा, सिलाई मशीन चलाता हूँ। अच्छा, तो बेरोजगारी एक दिक्कत है। आप भैया? हम भी बेरोजगार हैं, BA करके बैठे हैं। BA करके बैठे हैं? अच्छा, कब किया था आपका कॉलेज, कब कंप्लीट किया था आपने? 18 में। तो इसके लिए आप किसको दोषी मानेंगे? मतलब आप चाहेंगे कि नीतीश जी दोबारा आए या बदलाव होना चाहिए? क्या सोचा आपने? कुछ सोचा है? सोचेंगे हैं? अच्छा, कुछ आप खुल के नहीं बताए। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है अभी चुनाव में, कैसे रहे नीतीश कुमार? हम तो चाहे नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार रहे। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो पहले भैंस चराते थे, भैंस चराने के बाद मानते हैं अनपढ़ आदमी हैं। अनपढ़ आदमी पहले भैंस चराते थे, अनपढ़ आदमी थे, पहले बकरी चराते थे, फिर भैंस चराने लगे। ठीक है, लेकिन खाने कमाने में 25-30 हजार कमा लेते हैं, अनपढ़ आदमी है, कुछ करते हैं बस। तो पहले बकरी चराते थे या भैंस चरा रहे हैं? भैंस चराने के बाद फिर मतलब मजदूरी करने लगे। नहीं, मजदूरी सही है, उसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद फिर मानते मतलब हमारे जो है ना, नीतीश कुमार की सरकार में शांति आया तो कमाने लगे। हमें 2.5 बीघा मछली था पहले, लालू जी के राज में हमें चढ़ा दिया था, इसीलिए बेरोजगारी था। क्या था? मछली बुनने थे। मछली? हाँ, पहले। मछली क्या हुआ? फसल। अच्छा, फसल। हाँ, पहले दिक्कत होता था, चरा उड़ा देता था, शांति है। पहले क्या दिक्कत होता था लालू के टाइम में? चरा देता था, जो दुकान दिक्कत करता था। कौन दिक्कत कर रहा था? अरे लोकल आदमी दिक्कत करता था। यादव की बात कर रहे हैं यार, आप यादवों की बात कर रहे हैं क्या? लोकल आदमी, जब आप कह रहे हैं लोकल, यहाँ के नहीं, ऐसे अलग अलग के आदमी किस करें? अच्छा, पहले जंगल राज था, अब जंगल राज नहीं है? नहीं, अब ठीक है। ठीक है। और क्या किए नीतीश जी आपके लिए जो आप इतने खुश हैं? हम खुश है, शांत, सबसे बड़ा चीज हम शांत हैं। तो यहाँ ज्यादा कौन से समाज के, आप किस समाज के हैं? आप सारे? सभी समाज के। नहीं, बट आप किस समाज के हुए? हम महतो समाज के। महतो। यहाँ ज्यादा महतो ही हैं। तो महतो जिसे कहा जाता है वो कोरी में ही माने जाते हैं क्या? अच्छा, so these are basically Kurmi, Kori, these are the non-Yadav OBCs who are traditionally very supportive or have been supportive of JDU and Nitish Kumar. अच्छा, महिलाएं से थोड़ा पूछ लें। आपको बहन जी बताइए, चुनाव में कैसा लगा नीतीश कुमार? ठीक लगे, बदलाव आना चाहिए? क्या दिक्कत आपको हो रही है यहाँ, या क्या ठीक हो, अच्छा बुरा क्या है? पहले बार तो लालू के राज था, कितना बुराई हुआ, मरा कटा दिया, जजा पाता है, घिच मारता है। जहिया से नीतीश सरकार अथी हुआ है, कुछ शांति ढंग है। मगर नीतीश कुमार तो बोला कि बाल बच्चा के भूख मर के पढ़ाइए, अखने BA करा करके बैठे है,
कम कम खाएगा। रोजगार नहीं है, नहीं, तो शांति आ गई है शांति पहले है। से, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं। आपके घर पे भी आपके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं? हाँ बैठे हैं। आपके खुद? आपको खुद आओ हमारे दिए के। अच्छा, ये आप ही के हैं? हाँ बीए के हमको बेटा है। आपका बेटा बीए किया है, घर पे बैठा है, तो 2 साल से बैठा हुआ। रोजगार नहीं है। आपके फैमिली में, आपके घर में भी कोई है जो पढ़ाई करके बैठे हैं घर पे बेरोजगार? हम बैठे हैं, हम ही बैठे, हम ही पढ़िए रहे। कौन? रामबली। अच्छा, नहीं, आई थिंक खुद अपने बारे में बात करी है। एक और चीज था कि नीतीश ने कहा था कि वो कुछ 7 वचन या 5 वचन हर गांव में, मतलब ये सारी चीजें दी जाएंगी, तो उनके बारे में पूछना था। उसमें क्या क्या, जैसे कि तो 7 निश्चय बोल के नीतीश कुमार ने पिछली बार वादा किया था। वो कह रहे थे कि हर घर में पानी का कनेक्शन आएगा, हर घर में बिजली होगी, कंक्रीट रोड होंगे, नाले होंगी, शौचालय मिलेंगे सबको, जो तालाब और ये सब है उनको सही किया जाएगा, स्टूडेंट्स को लोन दिए जाएंगे और इंटरनेट लगवा दी जाएगी स्कूलों में और कॉलेजेस में। ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये सब हो गया है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, नाला हुआ है। बिजली हुआ है, नाला हुआ है। अच्छा, पानी मिलता है घर में टैप से, पाइप में पानी मिलता है। मिल रहा है, तो फिर क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? नाला है, बेरोजगार भी नहीं मिला है, बेरोजगार है, सब भी नहीं मिला। अच्छा, वो दिक्कत है, लेकिन बाकी सब कुछ मिल गया। नाला था, पानी आ रही है घर पे? जी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पावर बिजली आ रही है जी। जो इंटरनेट का वादा किया था वो मिल गई है? नेट नहीं मिला है। स्टूडेंट्स के लिए लोन का वादा किया था, शौचालय मिल गए हैं सबको यहाँ पे? सबको मिल भी नहीं किया है। एक सेकंड, एक एक करके शौचालय मिले हैं सबको? सबको नहीं मिला है। सबको नहीं मिला है? नहीं मिला। आपको मिला है शौचालय? नहीं सर, हमें मिल गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं अधिकतर में किसी भी उतना आपको अधिकतर में शौचालय नहीं मिला है। अच्छा, तो सबसे बड़ी दिक्कत रोजगारी की है। रोजगारी जी। लेकिन अदरवाइज आप नीतीश कुमार से खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? हम सब खुश उसी वक्त रह सकते हैं जब कुछ मेरे लिए वो करेंगे। कोई ऐसा थोड़ी ना कोई खुश रहेगा। अगर जो वो हमारे कुछ करते हैं तो हम भी उनके लिए हम जी जान अपने कर सकते हैं। राइट, समझे? तो ये है मेन यहाँ पे रोजगार का सबसे बड़ा है। सो आई थिंक दिस इज द मेन इशू ओवर हियर, that in this village at least, just across the road from the rally, that there is by and large support for Nitish, but this could also be because many of them belong to the community favorable to the JDU. But that's what they say, there has been some work done, but the main concern that still remains is that of unemployment. So now we have come to Ramnagar village, which is just a little further away from where the Nitish Kumar rally is to be held, and here these are the people of the village. तो आप बता रहे थे आप ये रामनगर गांव के हैं, और यहाँ ज्यादा कौन से समाज का ज्यादा जैसे होंगे? यहाँ यादव हैं, कौन है? यादव हैं। आप सब भी ज्यादा यादव समाज के हैं। अच्छा, तो चुनाव में क्या, जैसे अभी यहाँ नीतीश आने वाले हैं, उनकी रैली होगी, क्या आप सोच रहे हैं कि कुछ काम हुआ है यहाँ पे या नहीं हुआ है? क्या कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा, जैसे क्या क्या? नहीं स्कूल बनवाता है, न रोड बनवाता, कुछ नहीं यहाँ हुआ। न रोड है सर, न नल जल है, कोई ऐसी घोटाला हो रहा है खाली। अच्छा, रोड भी नहीं है, नल जल भी नहीं है? नल जल भी नहीं है। 5 साल पहले नीतीश जी ने 7 वादे किए थे, 7 निश्चय बताया था। एक तो पानी का, बिजली, रोड, शौचालय और ये सब मिला है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं मिला किसी को। पानी आता है? नहीं, हुआ देखो टंकी धैली। और फिर बिजली आती है घर पे? हाँ, बिजली है। बिजली आ गई। हाँ। रोड, सड़कें बनी है ठीक से? कुछ नहीं, देखो न सड़क बन गई। अच्छा, तो कैमरा कैन पैन बाय बिकॉज दे कीप टॉकिंग अबाउट दिस रोड। सो ये, अच्छा, ये गांव का अंदर का रोड है, खड़ंजा जैसा, ऐसा ही है वो? पानी है सर एकदम। अच्छा, और जाके पानी लग जाता है उसमें? आगे फिर पानी कुछ भराया आता है, जब कुछ अच्छा। तो ये बताइए, जैसे पिछले चुनाव में आप किसको वोट दिए?
मतलब लालू को दिए, नीतीश को दिए, कहाँ किस गांव में ज्यादा कहाँ हैं? नीतीश जी को दिए थे। नीतीश को दिए थे। अच्छा, क्या क्योंकि कोई उम्मीद थी या क्योंकि उनका लालू के साथ उस वक्त गठबंधन था? साथ गठबंधन था। अच्छा, इसीलिए दिए। अच्छा, इस बार जीते तेजस्वी यादव को, आनंद सिंह को। आनंद सिंह का हम लोग देंगे। अच्छा, इस बार आनंद सिंह को देंगे। Who is the RJD candidate, was with JDU, contested the last election as an independent candidate, and now has been given an RJD ticket for this election. Right. So Anand Singh, yes, earlier he was JDU, now earlier independent, now he is the RJD. वो अब ये वो उसके राजद से आनंद सिंह लड़ रहे हैं, उनको देंगे आप सब लोग? अच्छा, क्यों? काम करवाता है, करता है, देखता है। लेकिन आनंद सिंह तो यहाँ से 2005 से हैं, पहले जेडीयू के भी वही तो एमएलए थे, पिछली बार भी वही है। आप कह रहे हो यहाँ पे काम ही हुआ नहीं है, तो फिर वापस उनको क्यों देना है? नहीं, रोड बनाया उधर ना, उधर बनाया। उधर बनाया खुद। अच्छा, तो आप चाहेंगे कि क्या इस बार सरकार बदलाव आए बिहार में? जी। अच्छा, बदलाव चाहिए। कौन आना चाहिए फिर? तेजस्वी आना चाहिए। अच्छा, वो तो बहुत ही अभी पता नहीं उसके पास अनुभव है कि नहीं, तो बहुत ही यंग है। अनुभव रहे नहीं रहे सर, लेकिन देना बन जाएगा, जनता पर अनुभव बन जाएगा। अच्छा, तो ये कोई मतलब जो आप बात कह रहे हैं, ये कोई जातिकरण की वजह से तो नहीं है? जैसे अभी कहा जाए कि जो सारे यादव हैं वो नीतीश के खिलाफ ही हैं, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो सब बात नहीं है सर, वैसा नहीं है। नहीं। अच्छा, तो अभी नीतीश जी आए हैं, आप जाएंगे उन्हें देखने या नहीं? जाएंगे टहल। तो सब कोई भी आएगा, भाषण सुनने के लिए तो कोई भी आएगा नेता तो भी जय भी करेंगे। अच्छा, लेकिन आप चाहेंगे कि लालू मतलब क्या कहते हैं ये आए, तेजस्वी आए। तो एक चीज आप लोगों से पूछना था कि आप नीतीश कुमार से तो ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी तो सर अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं। आप लोग क्या दिए उनको? हाँ, मोदी जी को वोट दिए हैं सर। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। हाँ, दिए 2019 में। दिए? आप भी? जी सर। मोदी को दिए? सब टोटल यहाँ मोदी को दिए हैं। अच्छा, सबको ठीक लगे, अच्छे लगे? हाँ, ठीक है, अच्छे लगे। हाँ। अच्छा, क्या मतलब अच्छा लगा, मतलब किस वजह से दिए? और सर देश के लिए जो भी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं। हाँ। तो हालांकि यहाँ के आपके हालात आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन मोदी जी को आप दे रहे हैं। मोदी जी का सर सही लग रहा है। मोदी जी को लग रहा है? हाँ, हमको नीतीश से सर इसका नहीं लग रहा, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गठबंधन तो दोनों का है ना, भाजपा और उसका नीतीश का। तो सर इधर बिहार का है, मुख्यमंत्री का है, ये हम नहीं देखते हैं। हम तो आगे के ऊपर का प्रधानमंत्री का देखते हैं, जो देश के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए अलग है और मुख्यमंत्री के लिए अलग है। तो यहाँ पर मोदी जी भी आएंगे, नीतीश के लिए वोट मांगेंगे, तब तो नहीं वोट मिलेगा सर। नहीं वोट मिलेगा? नहीं, खुलाआम उसको एंटी करेंगे आप जी। So what we just heard the Mariam at that village of Yadavs is very illustrative of what people say about Bihar election and this election in particular. Firstly, you will hear different views of Nitish Kumar based on the identity, the social identity of the voter. So those OBCs who are seen as more partial to Nitish Kumar were more favorable to him in the earlier village. In the second village, the Yadavs were much more critical. But interestingly, they said something which people have often been saying about this election, that Mr. Modi's popularity remains high. Even Yadavs voted for him in the last election, but they won't vote for him this time, even if he's endorsing Nitish Kumar. That's the thing. So as people are discontent with Nitish Kumar, Modi is still popular, but will that help Nitish Kumar? That, I think, that's the big question.